आप सर्विफाई का मॉडल समझाइए। सर्विफाई का मॉडल ऐसा ही है कि जैसे समझो 1 लाख का आईफोन है, साल का प्रोटेक्ट प्लस करके हम एक्सटेंडेड कवरेज देते हैं, जिसमें सारे डैमेजेस अगर टूट गए बार बार आपको फ्री में सर्विस मिलेगा। अगर स्क्रीन टूटा, स्क्रीन फ्री में रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, कितनी बार की? हाँ, सर्विफाई इज द ओनली कंपनी हु इज एसोसिएटेड विद एप्पल केयर। एप्पल का जो ओन स्टोर्स है वहाँ पे एप्पल खुद बेचता है, बाकी जगह पे हमारे जैसा पार्टनर करते हैं, बट वी आर लाइक इंडिया में एक्सक्लूसिव है। इंडिया में अभी कितनी कंपनीज है जो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है? हमारे एंटरप्राइज बिजनेस है, इसलिए कोई सर्विफाई को नहीं जानते, लेकिन बहुत सारा कंपनी ऐसे जो डायरेक्टली रिटेलर के साथ टाइप करके बेचते हैं ये सर्विस ऐसा वाला। बट जब खराब होता है रिपेयर, वो कहाँ रिपेयर करवाते हो भगवान जाने। इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट ऐसा है कि दे ट्रस्ट मोर टू देयर लोकल रिपेयर शॉप। लोकल रिपेयर शॉप का ओरिजिनल पार्ट का गारंटी क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल आज आपका आईफोन होगा, अगर टूट गया तो आप एप्पल से सर्विस कराओगे, लोकल मार्केट से कराओगे? एप्पल से कराऊंगा। डू यू थिंक दैट इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल जायंट इन दिस स्पेस? ऑफ कोर्स विल बी। हमारा बिजनेस अगर सब कुछ सही रहा तो 50-60 हजार करोड़ टर्नओवर करेगा 10 साल में। What are the common mistakes consumer makes while buying electronics? समझो आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, ड्यूटी फ्री में जाते हो, आपको मालूम है कि आपको ग्लेनलिवेट का बॉटल लेके जाना है, वो बंदा उधर बोलते ये देखो जी, ये नया आया है, बहुत मस्त है, आपको चिपका देता है। सो बहुत बार कस्टमर का अवेयरनेस इज ऑल्सो एन इश्यू। One advice to a young entrepreneur, like what's the biggest learning from your journey? एक्सीलेंट। इसके ऊपर मैं 1 घंटा पॉडकास्ट सेपरेट कर सकता हूँ। So let's start from your journey. Let's start from the scratch. So my career, and then I'll talk about Servify. Yeah. Okay. So I did my engineering. Then I started my career with a company called BPL, which was back then like the Apple of India, Yeah. the largest electronics manufacturer. Lucky to be part of that company, great company. But I joined as a service engineer, while all of us were thinking that it will be a software development job, but ended up doing repairs, fixing TVs, Okay. and in a city where I never thought I will ever be here, and that's Mumbai. I come from Mangalore, so I didn't even know Hindi when I came here. So the journey started that manner, but I think a fabulous journey. Learned a lot. All the egos, all the entitlements are over because you have no one here. You are on your own. But I think that also gave opportunity to learn a lot, work with people that you would otherwise not get to work. But I think PPL had a great culture to really kind of learn and grow. So from BPL to Samsung to Tata's to last with Nokia, 2009, I decided to quit my corporate life and start something on my own. So of course, without knowing anything about startups, without knowing anything about how to run a business, because you've always worked in a company as if it's your own business, so you would look at things holistically, you would do everything right for the company. So the idea was, why not start something on my own? And that was the passion that led to starting my first business. 2009, it was called Service Solutions. Bootstrapped fully, scaled it reasonably well to over 1,500 people, 385 locations across the country. We scaled it outside India as well to Middle East. And in 2014, I sold that business to a German company called B2X. So that was my first exit, so to say. Again, without knowing what is really meant by exit. Because it was fully bootstrapped and, it's your own money. Obviously, I think a lot of fundamentals came to play because you're running a business to make money and add value to your customers, your partners. And I think that fundamentals really remained. And 2015 is when I started Servify. In between, I did something which is again a small startup in the US. But 2015 is when I started Servify after 1 year of selling my earlier company. And it's been 10 years now. We just completed our 10th anniversary. Yeah. So it's a very, very satisfying, proud feeling, but I think it's still day one. Okay. So we used to say that the famous Amazon founder dialogue, day one, right? For us, it's D1, D2, day one of decade 2. Day one of decade 2. Yeah. Okay. So now we are on day one Day again, one of but decade 2. Okay. So you are from Bangalore. Mangalore. Then why Bombay? Okay. There's a little story, and I can't tell everything publicly, but I'll still say. So I was supposed to be posted in Bangalore. Okay. So I joined in BPL Bangalore.
and my posting was Bangalore. So I joined as a graduate engineer trainee, but unfortunately in all big companies you have a little politics, right? So somebody who was supposed to be posted in Bombay used his some connections within the company, who was his mama or chacha or somebody who was a very senior guy. So he got our postings exchanged. Oh. So that's how I was posted in Bombay and he kind of stayed in Bangalore. So obviously it's your first job. You don't want to lose the opportunity and again start from scratch. So very, very unwillingly I came to Bombay. Not that I wanted to come. And those days, 90s, right? 98. Yeah. Bombay was the typical underworld. Also was a happening thing in Bombay. And supposed to be expensive, supposed to be dangerous, supposed to be, big metro. Yeah. So not that I wanted to come here, but I think ever since I'm here, I don't think I can ever think of going back from Bombay now. It's a city where, you really see the warmth of people. Yeah. And this is a dream city, right? So, city of dreams. City of dreams, right? Yeah. So, this has now become my home. Okay, so you started your career fixing TVs at BPL. Yeah. From there to build Servify. So, what did you see in this industry that other missed? No, I think, in after-sales service in general. After-sales service. Yeah. So, the mindset is most companies, you make a great product, you design it well, you make a great product, and then you find good people to sell it, which is where you have retail shops and online. But the focus is only to sell, and then after sale, very less focus is on how to service the customer who needs any service. Unfortunately, because it's only 1 or 2% of customers who need service. Right. 98 or 99% or 95%, they don't need. Yeah. So the companies are like, okay, वो 5% के लिए इतना क्या ध्यान देना है? And उनको सर्विस करने के लिए खर्चा लगता है. So after sales service is a cost center. So most companies, they keep certain budgets aside to service those customers, but that's an unwanted cost they have to incur. As a brand, you have a promise, right? 1 साल तक मैं support करूँगा कुछ तो. So to build that infrastructure, to service the customer, they have to spend some money. Right. Now, when it is a cost center, you will not really spend a lot. Correct. So आप सब जगह पे कंजूसी करने का कोशिश करते हो, which is what led to in this industry, not solving problems by technology, not having great people who look at service as more of loyalty, customer experience. तो आज भी आप बताओ, and unfortunately it's true even today. अगर आपका घर का टीवी खराब होता है या एसी खराब होता है, आपने किसी को बुलाया, आप बोलते हो उसको 10 बजे आओ, वो 10 बजे तो आता ही नहीं है, नहीं आता, वो 2 बजे दोपहर को आता है, तब भी आप खुश हो, अच्छा आ गया यार. सो योर माइंडसेट, मतलब यू यूज्ड टू दैट बैड एक्सपीरियंस. वही आप जेप्टो देखो या ब्लिंकिट देखो, 15 मिनट में अगर नहीं आया, आप 4 एस्केलेशन करते हो, सोशल मीडिया में जाके लिखते हो जेप्टो हैज गॉट इट रॉन्ग, राइट, बिकॉज अभी नाउ दे डोंट डिलीवर ऑन टाइम. सो अनफॉर्चुनेटली हमारा वो जो इंडस्ट्री में ऐसा था कि सर्विस मिला मतलब आपका नसीब. अगर वो माइंडसेट से कोई अगर धंधा चलाता है, वो उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं देखता है कि हाउ टू मेक इट प्रॉफिट सेंटर, which is what started changing from 2007-2008. I mean, look at hospitality industry. Marriott में क्यों लोग जाते हैं? Expensive है, because of that experience, because of the service. तो उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं. That's how loyalty is maintained. And that's exactly what an Apple did by having Apple stores that deliver end-to-end experience. Before that, unfortunately, most brands were not having their own experience locations. They were always selling through third parties. So वहाँ पे सिर्फ बिकता है. बिकने के बाद अगर समझो आज with due respect, any name you think, Reliance, Vijay Sales, Chroma और Best Buy, अगर आपने आईफोन खरीदा है, आईफोन का प्रॉब्लम अगर हुआ, आप अगर क्रोमा में जाओगे, वो क्या बोलेंगे? Go to Apple. Because that's their job. They are only there to sell. But Apple cannot do that in their own store. कि go to somewhere else. So they had to build service capabilities and that experience. क्योंकि Apple brand के लिए कस्टमर वापस आ रहा है. I think that's how the things started changing. But that's how the perception started changing. कि wow, देखो ना यार, Apple का सर्विस कितना अच्छा है. Now when that started happening, people realized that. But by the way, Apple used to charge heavily for that. वो free में नहीं है. Correct. That's why Apple phones are expensive. When you buy an Apple extended warranty, it's expensive, right? So
people started understanding that there are people who will pay extra money to get that premium service. Correct. And that's how the industry started changing. By the way, that didn't happen overnight. Second, even today many companies don't get it. But when we started, we said, hey, one is brands offer 1 year of limited warranty. कुछ हुआ तो manufacturing defect हम solve करेंगे. But what happens if your phone falls down and breaks? That is your problem. तो उसके लिए insurers business में आए, बोले कि insurance देंगे. But if I buy an iPhone, I want Apple to service, not an ICICI Lombard or a Allianz, right? I mean, it's okay for your car. बम्पर से आपको प्यार नहीं है, टायर से प्यार नहीं है, बॉडी से प्यार नहीं है. फोन में आपका डेटा है, मेमोरीज है, कंटेंट है. So you want somebody who manufactured or who owns the brand to be behind it. So we don't want third parties, right? That is where we said, why can't we build this as a business where you offer this as an extended service, premium service, but for a price. Correct. So this is how now you are getting money. So obviously service में customer पैसे देने लग गया है. So automatically the cost center started becoming a profit center. Now when you have profit center, you can invest, Correct. you can build experience. Right. So that's how we started. And today, I'm very proud that we are working with almost all the top brands. So how did this idea came to you? Like, did you see any other company invest or? Yeah. So 2-3 things. I think I've said this before. One is the whole why will customer pay? Okay. ये concept, of course, आपको Marriott में आप जाते हो तो मिलता है. आप अच्छे जगह पे जाते हो तो मिलता है. So which means customer will pay for good experience. Right. अनफॉर्चुनेटली हम कस्टमर को इधर फ्री में सर्विस देते थे, राइट? पहले 1 year मिनिमम वारंटी, उसमें आपको एज इफ यू आर मेड टू फील दैट कोई मेहरबानी कर रहा है. वर्सेस सर आपको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, 100 रुपए ज्यादा लगेगा. सो दिस इज हाउ, आई मीन प्रिंसिपली यू बिलीव दैट कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा तो कस्टमर सर्विस एक्सपेक्ट कर सकता है. बट आई थिंक माई जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर बीपीएल. एक कस्टमर था धारावी में, सैन धारावी, यहाँ पे आपको स्लम्स मालूम है. I was a junior, trainee kind of engineer. कस्टमर के घर पे गया, उसका टीवी नहीं चल रहा था. बड़ा 29 इंच टीवी था. तो कस्टमर जैसे मैं अंदर गया तो मुझे बंद करके बोला कि तू पैसे दे दे टीवी का, टीवी नहीं चल रहा है, नया टीवी खरीदा है. इट्स अ स्मॉल 100 स्क्वायर फीट, 100 भी नहीं, इतना छोटा रूम में फ्रिज के ऊपर टीवी रखा है. मतलब उसके घर पे इतना जगह भी नहीं है. वो कस्टमर एकदम मुझे मतलब गाली वाली दिया, माँ बहन जितना गाली जो मैंने लाइफ में नहीं सुना था सब दिया. फिर बोला तू पैसा दे तभी तू वापस जा सकता है. मैं पैसा कहाँ से दूं, मैं तो जॉब कर रहा हूँ. और मेरे को उसके बाद बोला कंपनी का मालिक को लेके आया. मैं तो मालिक के, मेरा ब्रांच मैनेजर का नाम नहीं जानता हूँ, इतना जूनियर हूँ मैं. वो मालिक को कहाँ से लेके आओ. उस टाइम पे फोन वोन नहीं था. तो बहुत गाली दिया, बोला टीवी अभी 50,000 का लिया है, 40,000 का लिया है और चल नहीं रहा है, तुम लोग ऐसा घटिया लोग, ये वो. मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर मुझे देखने तो दो, लेट मी ट्राई. अगर चलता तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता. मतलब आप मुझे, मैं किसी को नहीं जानता हूँ. ऑब्वियसली आई कुडंट स्पीक प्रॉपर हिंदी, तो और गाली मिली, तुम लोग बाहर से आते हो, हमारा नौकरी लेते हो, ये वो, मतलब एवरीथिंग बैड दैट कुड हैपन. फिर 1-1.5 घंटे के बाद उसको समझ आ गया कुछ होना तो नहीं है. तो बोला कि ठीक है देख ले एक बार. और लकीली मैंने देखा उसने वो पावर कॉर्ड ठीक से नहीं लगाया, तो लगाते ही चालू हो गया. जैसे चालू हो गया, कस्टमर का जो गाली देने वाला एटीट्यूड था वो एकदम चेंज हो गया. 2 सेकंड में चेंज हो गया. तू तो नासा का इंजीनियर है. मतलब दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड. नाउ ऑल दैट इज फन. उसके बाद मुझे बोलते हैं बियर पी के जाना पड़ेगा. मैं बोला सर नहीं, अभी जॉब पे नहीं पी सकता हूँ. नहीं पीना पड़ेगा. उसके बाद ये भी कि मतलब तू बॉम्बे में नया है ना, कुछ भी होता है तो भाई के पास आने का. तो ऑल दैट हैपेंड. मतलब ही वाज विलिंग टू बी माय प्रोटेक्टर. व्हाई? बिकॉज आई डिलीवर्ड टू हिज प्रॉब्लम्स. उसका प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, राइट? सो आई थिंक that is a data point for me that stayed with me all along. कि if you really solve a customer's problem, customer will pay you beyond what you ask. इसीलिए आप आज रात को कोई माल बाहर से मंगाते हो, वो बंदे को 50 रुपए टिप देते हो, क्योंकि उसने आपको उस टाइम पे भी सामान ला के दिया है. Forget the days of now Zeptos and the Blinkits 15 minutes delivery, but otherwise you would always do. Correct. You will tip. Correct. Not that he demands, right? Right. So which means if you deliver experience, if you solve a customer's problem, the customer will pay. So that's data point 1. So here, that's exactly what we said. अभी आज का एग्जाम्पल मैंने स्मार्टफोन के लिए हमने किया, टीवी के लिए. अगर स्मार्टफोन टूटता है, सर्विस नहीं मिलता है, उसके लिए अगर आप पैसा देख के पहले से बोलते हो कि कितना बार भी तोड़ो फ्री में सर्विस मिलेगा, बट एक बेसिक फी दे दो. It is like buying an AMC or an extended warranty. That's where that journey started. And obviously, everybody knew it. This will work.
But the problem is, how do you deliver this, especially in a very distributed environment like India? Correct. 2 लाख आउटलेट्स से फोन बिकता है हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 200,000 आउटलेट्स. छोटा सा पान का दुकान भी और छोटा फोन बेचने लग गया आज. If you have seen some of those outlets which are like less than 100 square feet. Correct. वो शायद एक कस्टमर खरीदता होगा दिन में. Tier 2, Tier 3 सिटी में Tier बहुत 2 है सारे ना, हैं, बहुत सारे. होते हैं. Now उस लेवल तक आपको ये प्रोडक्ट को अवेलेबल करना, बिकॉज इट्स अ डिजिटल प्रोडक्ट. सेकेंड, उधर से पैसा कलेक्ट करना. 800 रुपए का, 1000 रुपए का वो प्लान है मेरा, प्रोटेक्शन प्लान. मोर ऑफ अवेयरनेस की वहां तक आप ले जाना, दैट्स द टास्क है. टास्क. उसके बाद कलेक्शन. समझो वो बंदा ट्रांजैक्शन के बाद पैसा नहीं दिया तो मैं कलेक्शन के लिए पूरा मैं 2 लाख लोगों को मार्केट में नहीं रख सकता हूँ, बिकॉज 2 लाख जगह पे बिक रहा है. सो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी टू मैनेज ऑल ऑफ दैट. देन आप अगर, दिस इज लाइक एन इंश्योरेंस बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज यू आर प्रॉमिसिंग फ्यूचर सर्विस, बट पता नहीं कितना कस्टमर आएंगे सर्विस के लिए, कितना खर्चा होगा. सो यू हैव टू अंडरराइट द रिस्क. तो वो पूरा एक्चुअल वर्किंग है उसके पीछे, इंश्योरेंस की तरह. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको अगर आप LIC का पॉलिसी लिया है, वो रेट प्राइस कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन आपका एज का एक फैक्टर है, आपका मॉडल समझाइए ना. सर्विफाई का मॉडल समझाइए. सर्विफाई का मॉडल ऐसा ही है कि जैसे समझो 1 लाख का आईफोन है, अभी मेरा वो 1 साल का प्रोटेक्ट प्लस करके हम एक्सटेंडेड कवरेज देते हैं, जिसमें सारे डैमेजेस अगर टूट गए बार बार आपको फ्री में सर्विस मिलेगा, ग्लोबली मिलेगा, उसके साथ iCloud मिलेगा, सब कुछ है. वारंटी में हो, आउट ऑफ वारंटी में, सब कवर्ड है. मतलब आप कितना बार भी नीचे तोड़ोगे, आपको अगर स्क्रीन टूटा, स्क्रीन फ्री में रिप्लेस हो जाएगा. कितनी बार भी? हाँ, अनलिमिटेड क्लेम्स. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप रोज तोड़ते रहो जानबूझ के, बट दैट्स हाउ द प्रॉमिसेस. और घर से पिकअप होगा, घर पे डिलीवर होगा, सब कुछ है. मतलब इट्स लाइक अ वाव एक्सपीरियंस. नाउ हाउ डू आई प्राइस इट? व्हेन वी प्राइस इट, बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा सर्विस अगर मैं कस्टमर को बेचता हूं, समझो एप्पल केयर प्लस और प्रोटेक्ट प्लस, how many customers will come back with a broken screen or broken device in a year? So that is the frequency of claims. Any insurance business. और हर बार जब आते हैं, how much do you spend to service that customer? Display change करना है, service center, logistics cost है, call center cost है. So you price that. So basically number of requests and cost of service to service that request. वो simple एक math है, frequency multiplied by cost gives you cost of risk. मतलब आपको इतना खर्चा तो है ही है. उसके ऊपर आपको आए या नहीं आए इतना तो आपको करना है. हाँ, उसके ऊपर आपको ये सर्विस को मार्केट में बेचना है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, आप उसके लिए टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग कॉस्ट. उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड करना है, वो टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा कॉस्ट है. उसके बाद आपको चैनल जो बेचने वाले उसको तो कुछ मार्जिन देना है, तो मार्जिन को ऐड करोगे. ये सब करके आप एक प्रोडक्ट का प्राइस करते हो. दैट इज हाउ ऑन अ 1 लाख रुपी आईफोन the protection cost, हम प्रोटेक्ट प्लस बोलते हैं उसको, is about 9,000 to 10,000 rupees. 10%. Typically 10%. That is a customer price. Now the price at which the retailer is buying from me, क्योंकि उसको भी तो धंधा करना है, is a different price, and that's how they make their margin. That's their margin. So basically वो मेरे से समझो 7,000 रुपए में खरीद रहा है, और वो कस्टमर को 10,000 रुपए में बेच रहा है, तो वो 3,000 कमा रहा है. अब ये 7,000 में मेरा इंश्योरेंस कॉस्ट है 3-4 हजार का, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, फिर एक अपना टेक्नोलॉजी कॉस्ट है, फिर कुछ मार्जिन है, फिर कुछ हम समझो एप्पल जैसा कंपनी है या कोई भी है, उनको कुछ रॉयल्टी देते होंगे, उसका कॉस्ट है. सो बेसिकली दैट्स द यूनिट इकोनॉमिक्स. सो आप रिटेलर्स को देते हो एंड रिटेलर्स आगे कस्टमर को बेचते हैं. तो मतलब अगर समझो रियल एग्जाम्पल कैसा है, आप अभी जा रहे हो क्रोमा में जाके आप नया फ़ोन खरीद रहे हो या लैपटॉप खरीद रहे हो, समझो एप्पल का आपने लैपटॉप खरीदा, वहाँ पे एप्पल का वो एक छोटा सा शॉप इन शॉप टाइप रहेगा, जहाँ पे सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स ही रखा हुआ है, और एक एप्पल का लोगो लगा के एक बंदा खड़ा रहेगा, वो आपको प्रोडक्ट सारे एक्सप्लेन करेगा, फिर साथ में बोलेगा सर अगर समझो आपको एक्सटेंडेड कवरेज चाहिए इंश्योरेंस जैसा, एप्पल का ये भी सर्विस है कॉल्ड एप्पल केयर, जो आपको 1 साल के लिए एक्सटेंड करेगा आपका कवरेज. डैमेजेस सब कवर्ड है इसमें, अदरवाइज डैमेजेस आर नॉट कवर्ड. और ग्लोबली सर्विस मिलेगा, घर पे सर्विस मिलेगा. आप पूछोगे कितने में भी एडिशनल चार्ज है, तो बोलेगा सर 9,000 रुपए का है. यू मे नेगोशिएट सेइंग थोड़ा कम करोगे ना, तो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग फ्रॉम द डीलर्स मार्जिन. वो जो 9,000 में आप उसी पॉइंट पे प्रोडक्ट के साथ ही उसको खरीदते हो. बट दिस इज ए डिजिटल सर्विस, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोडक्ट ऐसा प्लास्टिक नहीं मिलता है, कुछ डब्बा नहीं मिलता है. नाउ वो जैसे खरीदते हो आपको एप्पल से कंफर्मेशन आएगा, नाउ योर कवरेज इज एक्सटेंडेड विद ऑल दिस इंक्लूजन्स. वो रहेगा तो आप कहीं भी ग्लोबली कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कभी भी नीचे टूटता है, कुछ भी होता है, यू कैन कॉल एप्पल, यू कैन गो टू एप्पल वेबसाइट, यू कैन यूज द सपोर्ट ऐप इनसाइड
एप्पल एंड रिक्वेस्ट फॉर सर्विस। वो पीछे से पूरा इकोसिस्टम है, सब हमने इंटीग्रेट। सर्विफाई इज द ओनली कंपनी हु इज एसोसिएटेड विद एप्पल केयर। तो इंडिया में हम अकेले हैं, मतलब मल्टीपल मार्केट्स नाउ वी वर्क विद एप्पल। बहुत सारे जगह पे जो हम एप्पल का जो ओन स्टोर्स है वहाँ पे एप्पल खुद बेचता है, बाकी जगह पे हमारे जैसा पार्टनर करते हैं, बट वी आर लाइक इंडिया में एक्सक्लूसिव है, हम अकेले करते हैं प्रोटेक्ट प्लस, बाकी मार्केट में हम एक्सक्लूसिव करते हैं। इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रिकल सर्विस इंडस्ट्री का? सर्विस इंडस्ट्री, मैं उसको सर्विस इंडस्ट्री नहीं बोलता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी वाइज इंडिया का मतलब सर्विस में वो इंडस्ट्री मतलब जो सिर्फ टूटता है, खराब होता है तभी आते हैं, वो इंडस्ट्री आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदते हैं लेकिन उनका नहीं टूटा तो इट्स लाइक एन इंश्योरेंस, करेक्ट ना, वो पैसा गया। बट ये इंडस्ट्री करीबन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अराउंड 3,000 करोड़ का है। 3 से 3,500 करोड़ का है। मोस्टली इज मोबाइल 70% मोबाइल है। 70%। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकता है मोबाइल। मतलब हिंदुस्तान में 15 करोड़ फोन बिकता है, स्मार्टफोन साल में, तो वो सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है। ओके, कंपेयर टू टीवीज और वॉशिंग मशीन। आई रियली वांट टू नो कि इंडिया में कंज्यूमर्स इस तरीके के सर्विस प्लान खरीदते हैं या खरीद रहे हैं? ऑफ कोर्स, देखो दिस इज पीस ऑफ माइंड, वेरी लो। सो टिपिकली क्या होता है, अभी हमारा बिजनेस तो ग्लोबल है, और हमारे हिंदुस्तान का बिजनेस अकेला अभी मतलब अच्छा स्केल में है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम सबसे बड़े हम ही हैं अभी। और हमारा एक ये है कि हम सिर्फ ब्रांड के साथ काम करने वाले हम अकेले हैं। बाकी सब अपना अपना ऐसे मतलब गफार मार्केट के साथ काम करके भी रिपेयर करवाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वाले में भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सबसे ज्यादा इसका वैल्यू किसको है, जो 1 लाख का फोन खरीदता है या एनीथिंग अबाउट 30-40,000 हाई एंड कंज्यूमर, क्योंकि उसके लिए क्या है, सर्विस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, और मतलब उसको सर्विस इमीडिएट चाहिए। करेक्ट। और वो रिपेयर अगर करने जाता है टूटने के बाद, वो 30-40% ऑफ द डिवाइस प्राइस है। जैसे अगर समझो आईफोन का आपको डिस्प्ले टूटता है, आप एप्पल से रिपेयर करवाओगे वेयर आपके पास ये कवरेज नहीं है, तो 40,000 का डिस्प्ले है, और एक बार और 2 बार तोड़ दिया 80,000 हो गया आपका। उससे अच्छा ये अगर 9,000 का आप साल का प्लान लेते हो कवरेज, आप अनलिमिटेड बार तोड़ो, कुछ खर्चा ही नहीं है। सो वो कस्टमर खरीदता है। सो जनरली हमारे लिए एनीथिंग अबाउट 30,000 इज अ गुड कैटेगरी, और 25,000 प्लस वाले हमारा ज्यादा खरीदते हैं। डोंट यू फील इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट ऐसा है कि दे ट्रस्ट मोर टू देयर लोकल रिपेयर शॉप, कि ठीक है वो पहले था। अभी वो बहुत चेंज हुआ है, ऑफ कोर्स, बिकॉज सी लोकल रिपेयर शॉप का ओरिजिनल पार्ट का गारंटी क्या नहीं है, नहीं गारंटी कुछ नहीं है। वो चाइना वाला जो डिस्प्ले वगैरह लगता है वो डेटा, इसीलिए वो 25,000 से नीचे वाले को चलता है। जो 25,000 से ऊपर, फॉर एग्जांपल आज आपका आईफोन होगा, अगर टूट गया तो आप एप्पल से सर्विस कराओगे, लोकल मार्केट से कराओगे? एप्पल से कराऊंगा। अगर नया है तो एप्पल से कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका डेटा है, आपको ओरिजिनल डिस्प्ले चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। और बहुत बार ये भी होता है, वो पार्ट जो डुप्लीकेट है वो ज्यादा चलता भी नहीं है, नंबर 1। सेकंड, अभी एप्पल जैसा कंपनी ने ये भी कर दिया है कि आप जैसे डुप्लीकेट डालोगे, आपको सामने स्क्रीन में नोटिफिकेशन आएगा, दिस इज नॉट एन ओरिजिनल डिस्प्ले। आपका सेटिंग्स पेज में हमेशा आता रहेगा। 4-5 साल हो गया तो यहाँ तक पहुंचा दिया कि कस्टमर को दिखाते हैं कि देख तुम्हारा जो भी बंदे ने किया ना ये डुप्लीकेट है। तो अभी वो भी एक कस्टमर को ऐसा है ना कि साला डुप्लीकेट डाल दिया। करेक्ट। और क्या है, वो जैसे करोगे ना, उससे सेकंड लेवल इम्पैक्ट कहाँ है, आप जब उसको बेच के नया खरीदने जाओगे, वो जो खरीदने वाला वो भी देखेगा, बोलेगा इसमें तो डुप्लीकेट डिस्प्ले यार, आपका 10,000 वैसे भी कम हो गया, 20,000 ऐसे ही कम हो गया रेट। करेक्ट। सो इंडिया में अभी कितनी कंपनीज है जो इस तरीके के, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है? सो वैसा हमारे जैसा कंपनी जो हम सिर्फ ब्रांड का प्लान बेचते हैं, तो हम व्हाइट लेबल करते हैं, हमारा एंटरप्राइज बिजनेस है, इसलिए कोई सर्विफाई को नहीं जानते हैं। लेकिन बहुत सारा कंपनी ऐसे जो डायरेक्टली रिटेलर के साथ टाइप करके बेचते हैं ये सर्विस, ऐसा वाला। बट जब खराब होता है रिपेयर, वो कहाँ रिपेयर करवाते हो भगवान जाने। मतलब वो एप्पल उसके साथ जुड़ा नहीं है, सैमसंग जुड़ा नहीं है, तो पार्ट ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल है मालूम नहीं, ऐसा वाला कंपनीज है। एंड ये मार्केट के लिए जरूरी भी है, कस्टमर को एक चॉइस चाहिए, राइट? चॉइस चाहिए, बिल्कुल। तो हमारा यही पॉइंट है कि कस्टमर को जिसको ओरिजिनल ब्रांड से चाहिए, ब्रांड का प्रॉमिस चाहिए, तो हमें, अगर आपको ब्रांड का प्रॉमिस नहीं है, थोड़ा अफोर्डेबिलिटी चाहिए, तो दूसरा है। तो ऐसा 2-3 कंपनियां, सारे हमारा दोस्त है, अभी एक ही इंडस्ट्री है तो हम सबको मतलब दोस्ती है। ऐसा 2-3 अच्छी कंपनी है, ऑन साइड गो करके काफी अच्छी कंपनी है,
वन असिस्ट करके एक है, ऐसा 2-3 कंपनियां हैं जो अलग अलग स्केल पे है और हमसे पहले शुरू किया हुआ कंपनी है. तो हम लोग मतलब सर्विफाई आई थिंक इज द लास्ट टू एंटर, बट हमारा पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस से स्टार्ट हुआ, टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच से स्टार्ट हुआ, ब्रांड प्रॉमिस से स्टार्ट हुआ. तो दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट. सर्विफाई इज एसोसिएटेड विद ऑल द बिग मल्टीनेशनल. एप्पल के साथ आप जुड़े हुए हो, सैमसंग के साथ, वन प्लस के साथ. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस दीज मल्टीनेशनल कि एक इंडियन ब्रांड ग्लोबल कंपनीज की आफ्टर सेल सर्विस हैंडल करेगी? वेरी डिफिकल्ट ऑब्वियसली, बट आई थिंक वन बिग एडवांटेज आई इंडिविजुअली हैड, क्योंकि मैं उधर काम करके आया हूँ. आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट. मैंने अपना करियर स्टार्ट किया रिपेयर से, आफ्टर सेल से, सर्विस से. उसके बाद टाटा में काम किया, सैमसंग में काम किया, नोकिया में काम किया. सो एक तो एक्सेस टू पीपल था और लोगों को पता था मेरा काम कैसा है, मैं मतलब अच्छा करेगा ही. सो आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट समबडी ट्रस्टिंग अस, सेइंग कि हाँ कुछ भी कर रहे हैं तो लेट्स ट्राई विद देम, अच्छा करते होंगे. एंड आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ कंपनी पहला. So I think that made it a little easy. But again, you have to convince not just one person. You have to convince the business, you have to convince the technology team, you have to convince the operations team, commercial team. Right. So सबका RFP निकलना, उसमें से आपको select होना, you have to qualify. बहुत बार बड़े RFP में हम qualify भी इसलिए नहीं होते, not that we are not capable. हमारा कंपनी का साइज इतना छोटा है, वो हमको अंदर ले ही नहीं सकते, हम इतना छोटी कंपनी है. But I think all of that has changed now. Now we are fairly sizable. But first few customers. But again, मतलब किसी ने भी bet किया. OnePlus was the first one to bet. Apple was the first one to bet. मतलब some of these big companies, जैसे Apple हमारा सबसे one of the first companies to believe in us. OnePlus was another first company to believe in us. तो ऐसा we got opportunity. It's a first mover advantage, मतलब कि एप्पल जैसी कंपनीज अगर आपके पास आ जाती है तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आ जाता है. करेक्ट. सारी दूसरी कंपनीज है, देन दे विल कम. आई कैन टेल यू 100% ट्रू, क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हो जिसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, करेक्ट, जो किसी के साथ ऐसा पार्टनरशिप नहीं करेगा. तो लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट बी टिक मार्क, राइट. तो हमारे लिए लोगों को लगता होगा हाँ अच्छे कंपनी प्रॉमिस डिलीवर करते होंगे, सिस्टम्स अच्छे होंगे, इनका कैपेबिलिटी होंगे. तो आई थिंक we never disappointed. I'm sure any company, and that's the reason we have not lost a single customer till date. सारे कंपनी हमारे साथ, हम उनके साथ ग्रो हुए हैं. जैसे एप्पल का हमने इंडिया में स्टार्ट किया, इंडिया से मिडिल ईस्ट बिजनेस मिला, मिडिल ईस्ट से यूरोप मिला. सेम वे सैमसंग इंडिया में स्टार्ट किया, फिर यूरोप मिला, फिर यूएस मिला, फिर मिडिल ईस्ट मिला. तो मल्टीपल कंट्रीज हम ऐसे ग्रो करते रहे, जस्ट बिकॉज आई थिंक वी केप्ट डिलीवरिंग आवर प्रॉमिस. हाँ, सर्विस, करेक्ट. और सी कंपनी को अगर किसी का भी लाइफ का फंडा है ना, इफ आई डिलीवर वैल्यू यू विल ऑलवेज वर्क विद मी. द डे यू डोंट फाइंड वैल्यू इन मी, यू विल स्टॉप वर्किंग विद मी, राइट. देयर विल बी ऑलवेज समवन एल्स. करेक्ट. अभी कितनी कंट्रीज में आप लोग? अभी ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज में हम ऑपरेशनल है. नॉट दैट वी हैव पीपल इन ऑल द 40 कंट्रीज, बट आवर बिजनेस इज रनिंग इन 40 odd कंट्रीज. दैट इंक्लूड्स यूरोप, ऑल कंट्रीज वगैरह. एंड एज ऑफ नाउ दैट्स 3 continents: इंडिया, मिडिल ईस्ट, I would call it as EMEA, India, Middle East, then Europe, जहाँ पे टर्की भी इन्वॉल्व हम लोग इंक्लूड करते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका. तो ये 3 continents है. We may be expanding to Latin America and Japan. Who is the biggest contributor in your revenue? सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ से मिलता है आपको? So see, हमारा बिजनेस क्या है, हम डायरेक्ट रिटेल के थ्रू बेचते हैं. So हर कंट्री में एक बड़े बड़े नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होते हैं. So pure revenue to whom I bill, there are like tons of big ones, whether it is a Chroma or a Vijay Sales in India, from a contribution to a AT&T or a Samsung in the US, or ऐसा अलग अलग लोग हैं. But from a brand contribution, क्योंकि ultimately हम इनका प्रोडक्ट, white label प्रोडक्ट बेचते हैं. So obviously it's Apple and Samsung, क्योंकि market share value wise उनका ही है. Correct. So obviously Apple and Samsung play. But which country? US? अभी यूएस हमारा सबसे बड़ा हो गया है. Why US? वहाँ स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है. हाँ, क्योंकि आप एग्जांपल देखो ना, जैसे इंडिया में एक तो 150 मिलियन फोन बिकता है, मतलब 15 करोड़. उसमें से $300 के ऊपर के फोन खाली 25 मिलियन बिकता है, मतलब 2.5 करोड़. अमेरिका में ASP $650 का है, ब्लेंडेड ASP. इंडिया का $200 है, मतलब
150 मिलियन का एवरेज $200 है, उधर जो बिकता है उधर भी 150 मिलियन फोन ही बिकता है, लेकिन $650 का भाव से बिकता है। मतलब उधर इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उतना हाई एंड फोन नहीं बिकता है ना। जैसे आईफोन कितना 10 मिलियन बिकता है हिंदुस्तान में, उधर 70 मिलियन बिकता है, 75 मिलियन। सो अपॉर्चुनिटी अपने आप बढ़ गया उधर। सो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी भी इसलिए क्योंकि यूएस में कंपैरेटिवली आपको स्पेंडिंग पावर ज्यादा है एंड easily availability of credit also. Correct, all of that, yes, all this developed markets का advantages है। और वहाँ पे क्या है, see लेबर आर्बिट्राज हमारा कंट्री में कैसा है, आप बोलोगे ना ठीक है ना ये 400 रुपए में करेगा बंदा, वहाँ पे आपको हाथ लगाने के लिए $40 लेगा, विच इज इक्वल टू 3500 रुपीज, राइट। सो लोग ये सब कवरेज का साथ में सब्सक्रिप्शन ले ही लेते हैं ताकि उनको हर बार पैसा देने का जरूरत नहीं है। वहाँ पे अगर आप फोन लेके कोई रिपेयर सेंटर में जाओगे, वो खाली टच करके खाली देखने के लिए $40 चार्ज करेगा। हिंदुस्तान में आप इधर कोई भी थर्ड पार्टी में लेके जाओ, 200 रुपए में देख के बोलेगा, अगर नहीं है तो आप नेगोशिएट करेंगे, क्या खाली देखने का पैसा लेगा क्या, बोलेगा ठीक है सर जाओ। सो इसीलिए, और क्या है, लोगों के पास इतना टाइम भी है इधर बहुत बार कि मैं खुद ही चले जाऊंगा। अमेरिका इतना बड़ा है, वो सर्विस सेंटर ढूंढते ढूंढते उसको 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो वो ज्यादा पे कर पूरा दिन का एक प्रोग्राम बन गया। सो इसलिए दे आर यूज्ड टू पेइंग मंथली। एंड प्लस वहां पे सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जैसा मार्केट में रिटेल से बिकता है, वहां पे टेलीकॉम ऑपरेटर बेचता है डिवाइस। 75% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू टेलकोस। ओके। और वहां पे क्या है, वो आपका मंथली प्लान में आपको हैंडसेट भी देते हैं। मतलब आपको $60 का आपका मंथली प्लान है, वहां पे एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जैसे जियो एयरटेल का सबका $1500 का प्लान है, सबसे एक्सपेंसिव होगा, है ना। वहां पे पर मंथ का $60 का प्लान होगा, समझो अपने कनेक्शन का। उसके साथ $25 पर मंथ देंगे तो आपको एक आईफोन मिलेगा, और उसके $10 ऐड करो, आपको एप्पल केयर उसके साथ में मिलेगा। तो कस्टमर $100 मंथली देते रहेगा, सर्विसेज चलता रहेगा सब प्रोडक्ट के साथ। हर 2 साल में दूसरा नया ले लो, खत्म, उसका कंटिन्यू चलता रहता है। एक्चुअली इंडिया में ना, जब तक मोबाइल पूरा खत्म नहीं हो जाता है, डेड नहीं हो जाता ना, पीपल दे डू नॉट चेंज इट। 5-6 साल तक तो चलाते हैं, बट इट इज नॉट सेम इन यूएस। 70% पब्लिक यूएस के अंदर 2-3 साल में दे चेंज देयर मोबाइल। तो वो नंबर्स है ना। हाँ, वो मतलब अभी इंडिया में भी काफी साइकिल फास्ट हो रहा है। ओके। सो जनरली क्या होता है, इंडिया में 2 तरीके का कस्टमर है। एक है प्रीमियम कस्टमर, दूसरा एस्पिरेशनल है, जिसको फर्स्ट आईफोन खरीदना है, कॉलेज से जस्ट बाहर आया, कॉलेज में जा रहा है, या अभी नौकरी लगा है तो एक आईफोन लेना है। वो कस्टमर जनरली 4-4 साल 5-5 साल यूज करता है, फर्स्ट टाइम है। ओके। जो इवॉल्व्ड कस्टमर है, उसको हर 1 साल में, हर 2 साल में नया चाहिए। अभी पुराना हो गया, चलो नया लेते हैं। ओके। अभी देखो जो थोड़ा सा एफ्लुएंट है, जैसे आपका डैडी होंगे या बहुत सारे लोग आपका सर्कल में होंगे, वो हर साल नया फोन, फोल्ड 6 लॉन्च हुआ, फोल्ड 7, चलो भाई मुझे फोल्ड 7 चाहिए, आईफोन 17 आया, या मतलब 15 से 17 में शिफ्ट करेंगे। मतलब हर 2 साल में एटलीस्ट चेंज करेंगे, ताकि उनको नया थोड़ा सा अपग्रेडेड चाहिए। अभी जस्ट आई गिव यू स्टैटिस्टिक्स। यूएस में जूता, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी हम वो इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं। हमने काफी सारा अभी रिसर्च हमारा चल रहा है। अच्छा। हर साल एक आदमी 12 जूता खरीदता है, 12 यूएस का एवरेज। यहाँ पे आप जूता कितना खरीदते हो साल में? शायद ज्यादा से ज्यादा 2। वो भी मतलब खराब हो 12। अरे वो क्योंकि वो $50 का $100 का शू उसके लिए $100 का बराबर ना। देखो हमारे डॉलर में हमारा प्रॉब्लम क्या है, सेकंड हमारे यहाँ पे जो भी माल आता है, अनलेस अभी जो मेड इन इंडिया वगैरह अच्छा खासा चल रहा है, बट अदरवाइज हमारा जो बाहर का माल इधर आता है, इट इज सो एक्सपेंसिव। आप सेम कपड़ा, जैसे आप अभी अच्छा कोई अरमानी का कपड़ा अगर समझो शर्ट पहन रहे हो, यहाँ पे आपको 25,000 में मिलेगा, वहां पे वही चीज आपको 8,000 में मिलेगा। अगेन इट इज अबाउट द स्पेंडिंग पावर। करेक्ट। सो जब तक चीजें यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, कॉस्ट कम नहीं हो सकता है। और पैसा देने वाले हमारा बहुत छोटा पॉपुलेशन, हम भले 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन पैसा सिर्फ 10 करोड़ लोगों के पास है, 8 करोड़ लोगों के पास है। वहां पे 35 करोड़ लोग हैं, लेकिन 20 करोड़ लोग बहुत पैसे वाले हैं। एंड आई फील जो क्रेडिट रेट वहाँ मिलता है, इंटरेस्ट रेट्स आर कंपैरेटिवली लो है। हाँ, क्योंकि एक लो ट्रस्ट मार्केट पर वहाँ पे क्या है, पहले से पूरा ट्रैकिंग है, सिस्टम है। बंदा अगर चोरी करेगा उसका फिर हर चीज सारी चीज पकड़े। इधर सी हमारा कैश इकोनॉमी था, हमारे पास आइडेंटिटी नहीं था। डाइवर्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। आप देखो ना, 10 साल पहले हमारा क्या आइडेंटिटी था?
करेक्ट, लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, वहां पे डे 1 से आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर मैंडेटरी है। हमारा आधार का इक्विवेलेंट वहां पे सालों से है, करेक्ट, तो हर चीज उस पे लिंक्ड है। यहाँ पे अभी आइडेंटिटी 10 साल में है, तो अभी आप डिफॉल्ट करो, आपका क्रेडिट रेटिंग खराब होगा, क्योंकि आपका सब कुछ ट्रैक आ गया। करेक्ट। सो लॉट ऑफ दीज आर डेवलपिंग नेशंस प्रॉब्लम। सो आई थिंक कि आपकी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अवेयरनेस है। हाँ, लोगों को पता नहीं है, और मार्केटिंग। करेक्ट, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच आई फील। कोई भी देखो हमारा जैसा बिजनेस का ना, कोई भी, जैसे आप आज भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, आप इंश्योरेंस खरीदने नहीं जा रहे हो, वहां पे जो दुकान में वो आपको समझाता है। हाँ। जैसे समझो आप आज आईफोन खरीदते हो, आप पहले केस के बारे में नहीं सोचते हो ना, उधर जो दुकान में आईफोन के साथ साथ वो पूछते, देखो सर ये 4 केस आपको चाहिए क्या, फिर आप उधर डिसीजन करते हो, हाँ ये अच्छा ये दे दे। सेम वे एक्सटेंडेड कवरेज भी आपको अवेयरनेस नहीं है, वहां पे वो बंदा आपको अवेयर करता है। लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी कितना लोगों के पास है, मेरे डेवलप्ड मार्केट्स में वो खुद मांगते हैं भाई इसका प्रोटेक्शन कवरेज दे दे, ताकि उसको मालूम है कि भाई एक बार खराब हुआ ना साला, मेरे लिए वो पूरा दिन का, मतलब मुझे 200 किलोमीटर भाग के जाना पड़ेगा सर्विस करने के लिए, $50 टच करने के लिए देना पड़ेगा। तो वो सब अवॉइड करने के लिए बोलते मंथली लेते रहे मेरे से $10, जब तक मेरे को सर्विस चाहिए मैं पे करते रहूंगा। सो यू सेड कि आप लोग यूएस में भी कर रहे हो, अदर कंट्रीज में भी कर रहे हो। सो यूएस में देयर आर अदर कंपनीज एज वेल, जैसे लाइकवाइज हो गया। हाँ, तो ऐसा है बहुत सारी कंपनी। सेम उनका भी पहले कॉन्सेप्ट क्या था, उन सबका कॉन्सेप्ट है हम इंश्योरेंस से रिस्क को अंडरराइट करेंगे, मतलब इंश्योरर देगा जो भी पैसा हुआ तो, प्रॉब्लम हुआ तो, लेकिन ब्रांड का कोई गारंटी नहीं, पार्ट्स ओरिजिनल है कि गारंटी नहीं, वो सब था। हमने बोला कि किसी को भी ये ऐसा वाला सर्विस से तकलीफ है, मतलब उसमें ओरिजिनल पार्ट्स नहीं मिलेगा, टाइम का SLA का गारंटी नहीं है, मिला तो मिला नहीं तो नहीं मिला, सर्विस एक्सपीरियंस नहीं है, कस्टमर को कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, यही चीज हम ब्रांड्स के साथ जुड़ के उधर लॉन्च किया। तो उनसे हम वो जो बिजनेस पहले था, लाइकवाइज वगैरह ब्रांड्स के साथ नहीं जुड़े हुए थे, दे वर अनऑर्गेनाइज्ड, दे वर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड, वो सब अपने उन्होंने अपना वेरी बिग बिजनेस। लाइकवाइज तो अभी काफी छोटा हो गया है, लाइकवाइज एंड देयर इज वन मोर एश्योरियन है। एश्योरियन, राइट, एश्योरियन काफी बड़ी कंपनी है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है ना। अभी वी आर द न्यू किड इन द ब्लॉक, हमारे जैसा किसी ने पहले बताया ही नहीं कि सर्विस में ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो उनका इतना बड़ा बिजनेस है, नो डाउट, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट ग्रेट बिजनेस, अच्छा बनाया उन्होंने, लेकिन वो कस्टमर को सर्विस करने के लिए खुद सर्विस सेंटर खोलना शुरू किया है। अभी एश्योरियन सर्विस कंपनी ज्यादा हो गया देन एनीथिंग एल्स, उनका खुद का 600 सर्विस सेंटर है, 600 एक कंपनी को खरीद लिया उन्होंने। उनका कॉल सेंटर में हजारों लोग हैं। हम क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट ना, कस्टमर अल्टीमेटली पे कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ क्यों 600, एप्पल का खुद का स्टोर 600 है, कस्टमर कहीं भी जाओ, क्योंकि एप्पल सर्विस दे रहा है। ये ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि पेरेंट के साथ नहीं काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इसके एक्स्ट्रा कॉस्ट, और पार्ट मिलता है नहीं मिलता है, ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल है, सब चैलेंज है। हमने बोला एप्पल से ज्यादा एप्पल का प्रोडक्ट के बारे में कौन जानता है, सैमसंग से ज्यादा कौन जानता है, करेक्ट। तो हमने उन्हीं को यूज किया, तो हमारा कॉस्ट भी कम है, एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, प्लस हमने सारा सिस्टम को इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से कस्टमर को पूरा विजिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, और यहाँ पे क्या है, ब्रांड भी साथ में अपना नाम दे रहे हैं। सो ये बिजनेस हमने काफी कस्टमर से ऐसा लिया है कि ब्रांड अपना नाम साथ में दे रहा है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट कंज्यूमर के अंदर बनाता है। एग्जैक्टली यही चीज हम प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि वही पॉइंट है ना, इफ I buy an iPhone, I want Apple to service it. Correct. Not any third party. Why should I believe any third party? However big that may be, right? First priority मेरे हिसाब से, because these products are very personal. इसीलिए. There is a big opportunity for your company. मतलब इतनी सारी कंट्रीज में हर जगह Apple. इसीलिए day 1 of D2. अभी तो हमको और 50 साल इस कंपनी को ग्रो करना है. Servify, आप हाउ डू यू अर्न मनी? सर्विफाई के मॉडल में आप लोग पैसे कैसे बनाते हैं? जैसे हमने बोला कि एक कॉस्ट ऑफ रिस्क है, हाँ, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, हाँ, उसके ऊपर हमारा टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है, हाँ, उसके ऊपर हमारा मार्जिन है। बट हु पेज यू? वो हम बेचते हैं रिटेलर को बेचते हैं। हाँ, रिटेलर को जब बेचते हैं, हाँ, उसमें ऑलरेडी हमारा मार्जिन एडेड है। ओके, तो हमने अपना कमाई ले लिया उधर से, फिर रिटेलर कस्टमर को बेच के अपना मार्जिन कमा रहे हैं। तो हमने अपना मार्जिन वो हमारा प्राइस में भी डाल दिया। जैसे आज कोई भी प्रोडक्ट समझो, आप एक प्लास्टिक बॉटल बना रहे हो, आप बॉटल को बना के एक दुकानदार को बेच रहे हो, आप अपना मार्जिन ऐड करके उसको बेच रहे हो, और उसको बोल रहे हो आप
देखो ये 10 रुपए में दे रहा हूँ, तुम कस्टमर को 15 रुपए में बेच सकते हो, तुम्हारा कमाई 5 है, लेकिन वो 10 में मेरा 2 रुपए ऑलरेडी इनबिल्ट है। एंड यू पे रॉयल्टी टू एप्पल। हम ब्रांड्स को, क्योंकि उनका नाम यूज करते हैं तो सब ब्रांड्स को हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, लेकिन वो लोग उसको मार्केटिंग में, इंसेंटिव देने में सब खर्च करते हैं। सो इज इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस राइट नाउ? तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस बट एज अ इंडस्ट्री बिजनेस इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल इफ यू रन इट विद एफिशिएंसी। सी कहाँ पे आपका गड़बड़ होता है, आपने सोचा ये सर्विस करने के लिए 10 रुपए खर्च होगा, लेकिन आपका प्रोसेस इतना लूप होल है, कस्टमर चोरी कर रहा है, चैनल आपका पार्टनर चोरी कर रहा है, तो 10 रुपए की जगह पे आपने 15 रुपए खर्च किया तो नेगेटिव होगा। हमारा वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम पूरा इतना कंट्रोल से, टेक्नोलॉजी से सब मैनेज करते हैं। तो यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पे हम काफी प्रॉफिट, ग्रॉस लेवल पे, लेकिन हम इन्वेस्ट भी करते हैं, नया मार्केट में लॉन्च करते हैं, उधर इंटीग्रेशन करना है, उधर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, लोगों को हायर करना है, इसमें हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है। अगर समझो ऑन अ ऑन गोइंग बेसिस अगर मैं नया जो इन्वेस्टमेंट निकाल के देखूंगा तो हमारा बिजनेस डे 1 से प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अभी हम एट अ कंपनी लेवल वी आर ऑपरेटिंग एट वेरी मिनिमल लॉसेस। इस साल पूरा हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न्स आने लग गया है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज, अगर सपोज आफ्टर सेल सर्विस प्लान लिया है, उन 100 में से कितने लोगों के मोबाइल सर्विफाई के पास आएंगे? एक परसेंटेज, मतलब 100 जन ने अगर सर्विफाई का प्लान लिया है, सपोज एप्पल के, वो चेंज हर कंट्री में, हर मार्केट में नंबर्स बदलता है, बट जनरली सिंगल डिजिट परसेंटेज में रहता है। अच्छा, और ये भी अलग अलग ब्रांड का अलग अलग परसेंटेज रहता है। जैसे एप्पल का सबसे लोवेस्ट होगा अभी, क्योंकि उनका बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा हो गया, व्हिच इज ग्रेट। तो बट कुछ ब्रांड्स का अभी सैमसंग का आई थिंक सबसे ज्यादा होगा। नहीं, वो मैं बोल नहीं सकता होता आपको, ऑफ कोर्स नहीं, उनका भी काफी अच्छा है, बट आई थिंक सी इट्स आल्सो कॉम्प्लेक्सिटी। अभी आप देखोगे एप्पल का हर साल एक मॉडल आता है। आईफोन 16 आया तो 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, ये 3 में 16 ही है, बट सैमसंग का 10 मॉडल, 50 मॉडल आता है, Xiaomi का 10 मॉडल आता है, Vivo का 10 मॉडल। सो कॉम्प्लेक्सिटी हर चीज में अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हर एक कॉम्पोनेंट का कुछ स्टडीनेस, क्वालिटी में डिफरेंस रहता है। सो बट जनरली सिंगल, देखो इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। यहाँ पे जैसे बाइक चलाने वाले बहुत है, पॉकेट में इधर फोन रख दिया, बाइक में चलते चलते नीचे गिर गया, टूट गया। अमेरिका में वो चांस ही नहीं, बाइक चलाने वाले बहुत कम है, सब गाड़ी के अंदर है, रोड में खड्डा नहीं है। सो chances of breakage is not based on the product quality, it is based on your usage pattern. तो इसलिए इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा टूटता है, बाहर कम टूटता है, बट बाहर कम टूटता है तो भी टच करने का पैसा ज्यादा लगता है, यहाँ पे टच करने का पैसा, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ लो है, वहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है। Do you think that India can become a global giant in this space? Of course, we are building from India for the world. Not right now. But we will be, of course. Of course we will be. अब हमारा कंपनी का 10 साल के बाद देखिए, विल बी द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इफ एवरीथिंग गोज वेल, टच वुड, इन दिस स्पेस विल बी बिगर देन एश्योर एंड एश्योरेंट। क्योंकि अभी क्या है, हमारा बिजनेस में जैसे एंटरप्राइज बिजनेस बोलते हैं ना, हमको बिजनेस मिलने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि इंटरनल बड़ी कंपनी के साथ काम करना, लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, फिर इंटीग्रेशन, सबके लिए टाइम लगता है। और एक बार ये सब होने के बाद हम लॉन्च करते हैं एक कंट्री में, फिर दूसरा कंट्री, फिर तीसरा कंट्री, फिर चौथा कंट्री। तो ऐसा फॉर एग्जांपल जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा उतना बिजनेस बढ़ता जाएगा। करेक्ट। हमारा जैसे अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा ना सर्विसेज, जहाँ जैसे अभी HP के साथ हमने बहुत सारा कंट्री में साइन किया हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ UK में फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अगले महीने शायद। ओके। फिर हम जर्मनी में स्टार्ट करेंगे 6 महीने के बाद, फिर कहीं और करेंगे। ऐसा अगर आप देखोगे हमारे पास ऑलरेडी विजिबिलिटी है अगला 3 साल क्या क्या होने वाला है, और 3 साल में कुछ नया चीज ऐड ही हो रहा है। तो उसी हिसाब से हमारा बिजनेस अगर सब कुछ सही रहा तो 50-60 हज़ार करोड़ टर्नओवर करेगा 10 साल में। 50,000-60,000 करोड़। What was the toughest moment for you while building Servify? सबसे ज्यादा चैलेंज कहाँ है आपको? See, in this journey of building a company which you will want to last for long, बहुत बार ups and downs आता ही है। Some are in your control, some are not in your control. जैसे कोविड हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट मोमेंट था। सडनली चलते हुए बिजनेस बंद हो गया। अभी उस टाइम पे भी हमारा कुछ 600 लोग थे कंपनी में, बिजनेस जीरो है। आप किसी को निकाल नहीं सकते, बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आप किसी को निकालना सही नहीं है। बट
धंधा जीरो है तो आपको लोगों को कैसे मैनेज करना है? सैलरी तो देना ही है महीने में, ऑफिस का रेंटल तो देना ही है, ऑफिस वाले से भले हम थोड़ा सा नेगोशिएट करके रेंट कम किया होगा, एम्प्लॉइज को कैसे देंगे? उनका भी खर्चा है घर का। आई कांट से कि आपको 50% सैलरी अभी मिलेगा, बट हमने काफी सारा चीज किया है जहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने कंपनी में लोगों को ऑप्शन दिया है कि आपको सैलरी के बदले में अगर कंपनी का स्टॉक में लेना है तो ले लो, जितना वैल्यू का है, तो उतना हमारा कैश बचेगा। करेक्ट। तो ओवर 95% पीपल ऑप्टेड फॉर शेयर्स सम ऑफ देयर सैलरी, तो हमारे लिए वो कैश बचा। तो आई थिंक जब आपके पास डिफिकल्ट मोमेंट्स रहता है, भगवान या लोग अच्छे अगर आप काम करोगे तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सो वो एक चीज है। उस टाइम पे हमारा पैसा कम हो रहा था, बैंक में अभी 2 महीने का पैसा बचा है, पता नहीं अभी क्या होगा। लकीली हमारे इन्वेस्टर्स हमको सपोर्ट किए, हर बार सपोर्ट किया है। वैसे बिजनेस में बहुत बार कुछ ना कुछ लीगल रेगुलेटरी चैलेंजेस आ जाता है। जैसे कोई आरबीआई ने किसी एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बैन किया, जो हमारा पार्टनर होंगे, जिनकी वजह से नो कॉस्ट ईएमआई में प्रोडक्ट बिकता है, वहां पे अगर प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया, हमारा प्लान बिकना बंद हो गया। तो ऐसा सब होते रहता है। तो बड़ा मतलब ऐसा चैलेंजेस भी आते हैं, बट आप सीखते हो उससे। सी यू विल ऑलवेज हैव सर्टेन रिस्क्स इन एनी बिजनेस। करेक्ट। नाउ हाउ वेल डू यू प्लान so that you can mitigate them quickly is how you build your predictability. तो इसलिए हम जब बजटिंग करते हैं, हम काफी चीजें सोचते हैं, चलो ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये कस्टमर का लॉन्च नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसी हिसाब से हम मॉडरेटिवली थोड़ा सा उसको एडजस्ट करते हैं। सो बहुत बार हम मतलब अभी तो एक्सपीरियंस भी हो गया और टीम में सीनियर लोग भी है, सबका थोड़ा ग्रे हेयर हुआ है, तो सब चैलेंजेस को हम मैनेज करते हैं। I'm sure, but there are so many compliances involved. We are a fully regulated business. तो हमारा सब जगह पे लाइसेंसेस, इंटरमीडियरी लाइसेंस या ब्रोकर लाइसेंस या ऑब्लिगोर लाइसेंस, मल्टीपल अदर मतलब हर मार्केट में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सो वो सब ऑब्वियसली बहुत। और देखो, और एक चीज में वेरी वेरी स्ट्रांग बिलीवर, ये मतलब बचपन से हमें सिखाया गया, घर में भी सब जगह पे, आपको कभी भी कंप्लायंस में कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो शॉर्टकट से आप कभी लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हो। दूसरा, हमारा जितने भी कस्टमर है, एप्पल, सैमसंग, सबका हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा कोई शॉर्ट टर्म ऐसे नहीं कि आज पैसा डालो कल डबल हो जाएगा, ऐसा वाला स्कीम ही नहीं है। तो बिकॉज व्हेन यू वर्क फॉर लॉन्ग टर्म, आप चीजें उसी हिसाब से बिल्ड करते हो। यहाँ पे आज भी अगर कोई कस्टमर या कोई भी कहीं भी हमारा, समझो किसी को हमको कुछ फेवर करना पड़े जिसकी वजह से धंधा मिला, ऐसा हम काम करेंगे ही नहीं। इट्स वेरी क्लियर। सो कंप्लायंस, टैक्सेस जो है भरना है टाइम पे, वो हर चीज में लाइसेंसेस जो चाहिए, जो सी उससे क्या होगा, आपको एक सरदर्दी कम है कि सोचना नहीं कि पीछे कोई देख रहा है आपको, कभी भी आपको बिजनेस पे रिस्क आ सकता है, वो सब करना ही नहीं। क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द डे 600 families lives are also at stake, right? Correct. So I can't put that risk at all. So we are super clear. हमारा तो Big 4 ऑडिट करता है, अभी डेलॉइट है हमारा ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर भी हमारा बाहर का है, काफी बड़ी कंपनी प्रोटिविटी, पहले डेलॉइट करता था। फिर हमारा बोर्ड है, अभी हमने इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स भी लाया है। तो आई थिंक यू हैव टू work on all of this if you want to really build a long term company. Correct. You have seen this industry widely. So what are the common mistakes consumer makes while buying electronics? बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत बार रिटेलर जो बेचना चाहता है वो बेच पाता है because of commissions and एब्सोल्युटली। आप अभी समझो, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, ड्यूटी फ्री में जाते हो, आपको मालूम है कि आपको ग्लेनलिवेट का बॉटल लेके जाना है। वो बंदा उधर बोलते ये देखो जी, ये नया आया है, बहुत मस्त है, ये टेस्ट करके देखो, सुपर्ब है, ये अभी सब लोग ले रहे हैं, ट्रैवल एक्सक्लूसिव है, आपको चिपका देता है। इसके साथ एक बैग भी फ्री दे देगा, करेक्ट ना? तो आप बोलते हाँ यार बढ़िया, एक बार ट्राई करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें उसको 10% ज्यादा मिल रहा है। ये भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी डज दैट। सो बहुत बार कस्टमर का अवेयरनेस इज ऑल्सो एन इश्यू। बहुत बार अच्छे डीलर कंसल्टेटिव सेलिंग भी करते हैं, आपका नीड के हिसाब से बेचते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली ऑन टॉपिक्स लाइक माइक्रोवेव खरीदना है, अभी मुझे पता ही नहीं माइक्रोवेव में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप तो उसको ही पूछोगे ना कि भाई बता अच्छा क्या है। फोन में तो आपको पता है, मुझे आईफोन 16 दे, मुझे सैमसंग फोल्ड 7 दे। सो आई थिंक डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, कस्टमर्स अवेयरनेस। जैसे अभी आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास फोन क्या है, आप बोलोगे आईफोन 16। कलर क्या है बोलोगे, जीबी क्या है बोलोगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपके घर पे टीवी का मॉडल क्या है,
आपको मालूम ही नहीं है, आप बोलोगे सैमसंग का है मॉडल, आपको याद ही नहीं क्योंकि उसका मॉडल का नाम है X58-V-2। करेक्ट। सो आई थिंक ये सारे चीजें जैसे पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट है वहां पे कस्टमर का अवेयरनेस ज्यादा रहता है, जो प्रोडक्ट पर्सनलाइज नहीं है कस्टमर को थोड़ा अवेयरनेस कम रहता है, तो इसलिए रिटेलर या सेलर के ऊपर आपको डिपेंडेंसी रहता है। ओके, गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन राइट टू रिपेयर प्लान, राइट? करेक्ट। बट अगर ये एक्टिव होता है, ये प्लान आता है, तो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट बेसिकली ये अच्छी चीज है। सबसे पहले राइट टू रिपेयर मतलब क्या है, पहले क्या होता था, कस्टमर्स को खुद रिपेयर करने का अगर इंटरेस्ट है, उसको पार्ट्स वगैरह मिलता नहीं था। वो क्यों नहीं मिलता था? अनफॉर्चुनेटली 1% कस्टमर खुद रिपेयर करना चाहते हैं, 99% ये ग्रे मार्केट वाले हैं। करेक्ट। वो पार्ट वार्ट को इधर उधर घुमाते हैं, उसमें से डिस्प्ले से ग्लास निकालना, उसका अंदर का पार्ट निकालना, 1 से 4 पार्ट बनाना, वो बना के कस्टमर को चिपका देते थे। इसलिए कंपनियां बड़ा स्ट्रिक्ट ये सप्लाई चेन को कंट्रोल करते थे। अभी कस्टमर खुद बोलता है मैं खुद करूंगा और मैं ही जिम्मेदार हूं, तो उसको देने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो पहले ये लॉ नहीं था, बट ये कस्टमर का राइट है, बोलता है कि मैं खुद रिपेयर करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, कस्टमर को एक एक्स्ट्रा लेबर चार्ज किसी को देने का जरूरत नहीं है, बट वो नॉलेज भी चाहिए कैसे करना है। करेक्ट। इसीलिए आप डायग्नोस्टिक्स का इन्फॉर्मेशन देते हो, वीडियोस में हेल्प करते हो, पूरा एक्सप्लेन करते हो ऐसा ऐसा करना है। अगर कोई करना चाहे उसको पार्ट मिलेगा। नाउ दैट इज कंज्यूमर्स राइट, जिसको इतना सब इंटरेस्ट है। तो थर्ड पार्टी उसमें जो बीच में ब्रोकर है, बीच में जो रिपेयर करने वाला है, वो निकल जाता है। नाउ इससे कंज्यूमर के लिए रियल एडवांटेज है, क्योंकि उसको डायरेक्ट अभी ब्रांड के साथ जुड़ने का चांस है। नाउ हाउ डज इट मैटर टू अस, और हमको कैसे, हमारा बिजनेस ऐसा है जो ये रिपेयर का टाइम में सरदर्दी नहीं चाहिए वो वाला है, खुद रिपेयर करने वाला नहीं है। करेक्ट। तो मेरे लिए वो कस्टमर मेरे ही कस्टमर रहने वाला है। हाँ। जो राइट टू रिपेयर वाला कस्टमर है, वो बोलता है मैं कुछ भी हुआ तो मैं ही देख लूंगा, वो तो मेरा प्लान आज भी नहीं खरीद रहे। राइट। सो ये लॉ अप्लाई हो चुका है ऑलरेडी? देखो बहुत सारा चीज लॉ में है, इम्प्लीमेंट है। अभी सिग्नल तोड़ना लॉ अप्लाइड है। आप कितना बार सिग्नल तोड़ते हो? जब पकड़े जाते हो तभी वो अप्लाई होता है। तो बहुत सारी जगह पे इंक्लूडिंग डेवलप्ड मार्केट्स, अभी बहुत सारा कंपनियां ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने में भी थोड़ा सा प्रोसेस इतना डिफिकल्ट करते हैं। मतलब कस्टमर को राइट टू रिपेयर है, लेकिन पार्ट ऑर्डर करने के लिए आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें आपको बैंकिंग डिटेल देना पड़ेगा, इतना सारा प्रोसेस, इतना ऐसा बनाएंगे ना तो आप बोलेंगे छोड़ दो यार अभी। सो ये वो स्टेज पे है, बट आई थिंक अगले 2-3 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर इज ऑलवेज किंग। अगर आप अपना कंज्यूमर को लाइटली लेते हो, कोई भी ब्रांड कितने भी बड़े हो, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी बर्बाद हो गई। सो कंज्यूमर का अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं खुद करूं, तो आपको रेट देना चाहिए। अभी कोई चीज में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे ये फोन है, इसको फोन को कंज्यूमर भले चाहे मैं रिपेयर करना चाहता हूं, उसको इतना आसानी से इसको खोलना ही नहीं आएगा। क्योंकि वो डिस्प्ले को निकालने के लिए उसको हीट करना है, हीट करके उसमें से खींचना है, उसके लिए वो जिग्स रखता है, उसके लिए वो टूल्स लगते हैं, तो वो टूल एक्सपेंसिव है। आप एक बार का अपना 500 रुपए 1000 रुपए रिपेयर चार्ज बचाने के लिए आप थोड़ी में 1 लाख रुपए का टूल लेकर, करेक्ट, सही बात है। सो प्रैक्टिकलिटी भी एक काफी चीज है, बट वही आपका अगर समझो घर का माइक्रोवेव है या वॉशिंग मशीन है, उसमें क्या इतना दिमाग लगाना है, 4 स्क्रू खोलेगा तो आपको मोटर मिल जाएगा। उसके लिए राइट टू रिपेयर इज मोर एप्लीकेबल। सो फॉर एन इंडियन बायर, व्हाट आर द 3 थिंग्स दे मस्ट चेक बिफोर बाइंग अ वारंटी प्लान? गुड, वारंटी प्लान। नंबर 1, देखो वो वारंटी ब्रांड दे रहा है, बाहर वाला दे रहा है। ब्रांड दे रहा है तो ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कोई दे रहा है, या बिकॉज़ ऑब्वियसली ब्रांड इज प्रेफर्ड। नंबर 1। सेकंड, ये पहले प्रॉब्लम था, अगर ब्रांड का है तो आपको सारा चीज, ऑब्वियसली ब्रांड को अपना रेपुटेशन है, सो दे विल नॉट डू समथिंग रॉन्ग। अदरवाइज बहुत सारा हिडन टर्म्स होते हैं, जैसे बोलते हैं अनलिमिटेड रिपेयर्स, लेकिन उसके बाद बोलते हैं नहीं रिपेयर करते वक्त ना हम आपको 10% पैसे देंगे, अनलिमिटेड करा दो लेकिन 10% डिस्काउंट देंगे। वो अंदर छिपा हुआ रहेगा। सो टर्म्स टर्म्स नहीं पढ़ते, कोई भी पढ़ता ही नहीं है ना। तीसरा, इसका रियल वैल्यू देखो। सो अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ट्रस्ट चाहिए, आपको ये सारा हैसल से बाहर निकालना है, तो आपको राइट चीजें देखना है। मतलब खाली मनी इज नॉट जस्ट द
अगर कोई 8,000 में दे रहा है, कोई 10,000 में दे रहा है, सो डोंट लुक एट ओनली मनी, लुक एट द रियल वैल्यू यू गेट फॉर द मनी यू पे. मतलब अगर समझो आप एक एप्पल का एप्पल केयर है, दूसरा एक थर्ड पार्टी 1 है, थर्ड पार्टी 2, ऐसे 2-3 प्लान है कंपैरिजन के लिए. एप्पल का आपको 8,000 में मिल रहा है, एक 6,000 में मिल रहा है, एक 5,000 में मिल रहा है. लेकिन अगर वो 5,000 में आपको खाली 2-3 ही सर्विस दे रहे हैं या कुछ चीजें हिडन है, तो आपको 5,000 का, you are paying more for the 5,000 ना. Exactly. So what is one myth about device service that you want to break? So basically अगर लोगों को लगता है कि ये अभी जरूरत ही नहीं है, कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा. See, uncertainty doesn't come with notice. Correct. That's why it's called accidental protection. जैसे आप इंश्योरेंस क्यों लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस? बीमारी बोल के नहीं आएगी ना. हाँ, सेम वे आप गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों लेते हो? सो इन माय ओपिनियन ये अभी भी मिथ है, मेरा तो मैं आज तक नहीं तोड़ा, बट डेटा बोलता है, डेटा 93% of the smartphone users have broken their screen till date once at least. 93%, ये ग्लोबल डेटा है. अपना जब से स्मार्टफोन खरीदा एक बार तो 93% लोगों ने तोड़ा ही है. आपने भी तोड़ा होगा एक बार. एक बार तो तोड़ा ही है. हाँ, तो ये डेटा है. मतलब अगर कोई बोलता है मेरा था हाथ से नहीं टूटता है, वो बहुत गलत फहमी है. सो बेसिकली यू आर प्रोटेक्टिंग दैट अनसर्टेनिटी. बट उसके साथ साथ क्या होता है, यू गेट अ ब्रांडेड कवरेज, ग्लोबली कवर. अभी आप ट्रैवल करते हो कहीं भी, और ये सब चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं. कब खरीदा था यार, फोन कितना पुराना है, मेरे को फ्री में मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा. सो यू हैव दैट फुल, मतलब समझो आपके साथ एक असिस्टेंट है हर बार. करेक्ट. तो ये चीज प्रोवाइड करते. सो बेसिकली पीस ऑफ माइंड. सो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली पहले इसको डरा के बेचा जाता था. सो दिस इज नॉट एन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस ऑलवेज कम्स विद अ रिस्क फर्स्ट अप्रोच. दिस इज अ कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोडक्ट. अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ये लेना चाहिए. सो इफ यू हैड टू गिव वन एडवाइस टू अ यंग एंटरप्रेन्योर, लाइक व्हाट्स द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम योर जर्नी? एक्सीलेंट. दिस इज, इसके ऊपर मैं 1 घंटा पॉडकास्ट सेपरेट कर सकता हूँ. Jokes apart, but I think because you have started from scratch, from a very low level. I think genuine, ये मतलब see, I think see सबसे पहला मेरा 2-3 लर्निंग्स है, और उसको मैंने अभी इंस्टीट्यूशनलाइज इन सम फॉर्म और शेप किया है विद इन आवर कंपनी एंड व्हेन आई टॉक टू पीपल. सबसे पहला ऑनेस्टी. सो आप जो बिजनेस में हो, आप ये चीज को रियल सॉल्व करने के हिसाब से आप बिजनेस में आओ. ऐसा नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है, इससे फेमस हो जाऊंगा मैं, मेरे को वैल्यूएशन मिलेगा. वो अगर आप उस इंटेंट से शुरू करोगे, शायद आप स्टोरी टेलर अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस आप वैल्यू ऐड नहीं करता है किसी को, एक ना एक स्टेज पे वो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा. किसी और का भी पैसा उसमें डूब सकता है. सो बेसिकली बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. गिव योर 100%. नंबर 1. नंबर 2, बहुत बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो सुपरस्टार है, हर चीज आता है मुझे, मैं फाउंडर हूँ यार, मेरा आइडिया है, मेरे को सब कुछ आता है. आप अकेले सुपरस्टार कुछ नहीं कर सकते हो. आपको एक सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस रहेगा. अगर आपको फाइनेंस में एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा सीएफओ हायर करो. अगर आपको टेक में एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा टेक सीटीओ को लेके, और वो भी सुपरस्टार है. करेक्ट. यू कैन डू द वर्क अलोन. एक बंदा सुपरस्टार हो ही नहीं सकता है. सो यू हैव टू हैव सुपरस्टार्स अराउंड यू, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस. बाकी एकदम बेसिक्स आइटम्स है. जैसे लोगों को लगता है कि मुझे सब आता है, मैं फाउंडर हूँ यार, स्टार्टअप फाउंडर, मैं साला आई एम लाइक सुपरस्टार, आई नो एवरीथिंग. सारे टॉपिक पे लोग ज्ञान बांटते हैं. इसीलिए मैं तो बहुत कम सोशल मीडिया में भी हूँ, बाहर भी हूँ, जहाँ पे फोकस मुझे करना है बिजनेस पे. राइट. अनफॉर्चुनेटली लोगों को वो मिसमैच है कि मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भले हो या नहीं, लेकिन ज्ञान सब पे बांटते हैं. ये थोड़ा सा कम करो अगर आप, क्योंकि फोकस आपको बिजनेस में 24 घंटा देना है, बस आपको बिल्ड करना है. तो ओनली देन यू कैन रियली गिव 100% एंड बिल्ड इट, बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट. इट इज लाइक आप बच्चे पैदा कर रहे हो, उस टाइम पे आपको बेबी के लिए टाइम देना है. राइट. सो व्हाट उसका एक मैंने जैसे बोला कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, तो अगर आप हमारा कंपनी की वेबसाइट में भी जाके देखोगे, उसको हम 7 C's बोलते हैं, विच इज आवर कल्चर इन द कंपनी. 7 C's. सो 7 C's क्या होता है? फर्स्ट सी इज क्यूरियोसिटी. आपको अगर क्यूरियोसिटी, जैसे आज आप एक छोटे बच्चे को पूछोगे, घर में कोई बच्चा होगा कि ये स्काई ब्लू क्यों है, वो बच्चा
आंसर देगा। अगर मैं आपको पूछूंगा, आप मुझे पूछोगे, शायद हम आंसर नहीं दे पाएंगे, भले हमको पता है क्यों है, लेकिन हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारा एरोगेंस हमारा सीख को बंद किया है, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सब आता है, उससे हम सीखना बंद करते हैं। सो नेवर एवर स्टॉप बीइंग क्यूरियस। सीखो, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आपके पास एटीट्यूड है। सो एज ए फाउंडर बी क्यूरियस, एज ए टीम बी क्यूरियस, ये हम सबको बोलते हैं, स्पेशली टू समबडी हु स्टार्टिंग अप। क्योंकि क्यूरियस रहेगा ना, फर्स्ट सी यू गेट क्लैरिटी, सेकेंड सी जब आपके पास क्लैरिटी है देन आपको करेज भी आता है, और उसके साथ अगर आपका कन्विक्शन है, विच इज आवर फोर्थ सी। आज अगर आप इधर भी देखोगे कहीं आपको दिखेगा, कन्विक्शन इज आवर बिगेस्ट फंडिंग ग्राउंड। आप पूछ रहे थे ना आपका मोस्ट डिफिकल्ट टाइम क्या था, कोविड का टाइम पे भी, विच अनफॉर्चुनेटली इज अनदर सी। कोविड के टाइम पे भी हमको जितना भी स्ट्रेस था, लेकिन पता था कि कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि कन्विक्शन था। पैसा नहीं है, लेकिन गांव में जो घर बचा उसको भी बेच के मैं कंपनी चला लूंगा। कन्विक्शन है कि ये हम कभी ना कभी इसको अच्छा करेंगे। सो कन्विक्शन, ऐसा बहुत सारी चीजें। केयर, लोगों के लिए आपको केयर करना जरूरी है। अगेन बहुत सारा स्टार्टअप फाउंडर्स मैंने देखा है अपना एक्सपीरियंस में, और बहुत सारी कंपनियों में भी लोग थोड़ा सा एरोगेंट हो जाते हैं। अगर आपको अगर आपको आज भी, जैसे मैं लोगों को हैंड रिटन नोट बेचता हूँ, अगर किसी बंदे ने आपके लिए 8 साल दिया है, उस बंदे को आप अगर पर्सनली बात भी नहीं कर सकते हो, मेरा आज भी कोई भी बंदा मेरे रूम में आके बैठ सकता है, बात कर सकते है, कोई भी टॉपिक में, उनके साथ पार्टी करते हैं हम लोग सब एकदम क्लोज। मेरा रोल है विच इज रनिंग द कंपनी, तो मैं रूथलेस भी हूं मेरा काम पे, बट वो काम पे, उसके बाद वो मेरा दोस्त है, वो मैं उसका दोस्त हूँ। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्किंग फॉर वन कॉमन ऑब्जेक्टिव। सो केयरिंग फॉर पीपल इज इक्वली इंपॉर्टेंट, विच इज लाइक, इसलिए मैंने बोला वो 7 C's हमारा, देयरफॉर इट इज माय इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे ऑफ advice to any startup founders or anybody who wants to. There can be one more C. Please. Character. I believe in character. Yes, of course, I agree. It's totally the biggest absolutely, one, right? Absolutely. ये सब मिलके तो कैरेक्टर बनता है. Exactly. Yeah. इसीलिए हम बोलते हैं कि लास्ट सी हमारा कॉन्कर है, मतलब if you have all of this you can conquer the world. Conquer the world. This is a new learning for me today. 7 C's. Very nice. So what next for you? See, from an excitement. Yeah. When I say next, I don't look at things short term, long term. क्योंकि अभी सी मनी इज नॉट अ बिग ड्राइवर। पैसा इंपॉर्टेंट है, बट पैसे के लिए बहुत सारे चीज नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी आप वो स्टेज पे हो, आपको कुछ बिल्ड करना है जिससे आपको बियॉन्ड मनी सेटिस्फैक्शन चाहिए, विच इज वेयर वी वांट टू टेक द कंपनी पब्लिक। ओके, आई वांट टू हैव 100 पीपल इन सर्विफाई हु स्टार्ट्स अप देयर ओन कंपनी एंड मेक्स अनदर सर्विफाई। अभी ऑलरेडी हमारा ऐसा 10-12 लोग हैं, जिसमें 4-5 जन को मैंने भी छोटा छोटा फंडिंग इन्वेस्टमेंट किया है। दिस इज हाउ यू क्रिएट माफिया, कि हाँ आपको अच्छा लगेगा, राइट, ये बंदा हमारे साथ। You want to create more entrepreneurs. हाँ, तो ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो जितना एंटरप्रेन्योर्स बाहर निकलेंगे, जैसे आप आज इंडिपेंडेंट हो, आप 4 जन को और नौकरी दोगे, 4 जन का घर चलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव, एंड इफ यू कैन एनकरेज दैट, व्हाई नॉट? इट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी। इट शुड, आई मीन एवरीबॉडी शुड डू, व्हाई नॉट? देयर इज सो मच ऑफ, आई थिंक, इनसिक्योरिटी। वो प्रॉब्लम है ना, लाइक फिर वो लोग अपने कुएं में रहते हैं। सो मेरे लिए देयरफॉर बिल्डिंग ए जनरेशनल कंपनी, मतलब 10 साल के बाद भी कोई बोलेंगे हाँ वो कंपनी अच्छा है, सर्विफाई में अच्छा है। सो आई थिंक दिस इज अ कंपनी वेयर यू नो आई वांट टू रिटायर। मतलब ठीक है, अभी हो गया सब। सो whenever I meet to people who are from South, mostly because we are working with the many South vendors in textiles. I've seen in all of them there's some kind of discipline. हमको बचपन में इतना सिखाते हैं। Leadership is different in those people. So I meet my vendors in Tirupur. हाँ, कपड़े का बहुत बड़ा है। हाँ, Tirupur में I meet them, and when I visited their manufacturing unit, it is totally different from North India, and their work culture is very different. Yeah, high, very high. Very different. You can learn a lot from them. No, वो तो 100% है, क्योंकि हमको बचपन से ना, लाइक मैं जब छोटा था, बेड में हम लोग, यू कांट गेट टू स्लीप इन द बेड अगर आपने हाथ मुंह नहीं धोया है, पैर मुंह नहीं धोया है। यू हैव टू वॉश एंड ब्रश एंड कम एंड, मतलब इतना, और उठने के बाद आपको घड़ी करना है। सो फ्रॉम देयर आवर डिसिप्लिन स्टार्ट्स। यहाँ पे अभी मैं देखता हूँ मेरे बच्चे को, क्योंकि 2 मेड है घर पे, वो कोई है काम करने वाला,
तो हम एनकरेज नहीं करते, राइट, हाँ वो कर लेगा। आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है साउथ वर्सेस बाकी जगह पे। हम लोग को वैसा जनरली वो डिसिप्लिन में, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ लिटरेसी रेट और एजुकेशन, एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या है, सी नॉर्थ वाज ऑलवेज बिजनेस, और यू आर इन मिलिट्री, आर्मी, देश के लिए लड़ रहे, वेस्ट में अगेन बिजनेस कम्युनिटी। सो साउथ में एजुकेशन वाज द ओनली स्ट्रेंथ पीपल हैड with which they could make their living. So that naturally became kind of a... Correct. Thank you, sir, for giving your time, and it was a great conversation. We have learned a lot about this industry because I was not familiar with this industry. Don't worry. Nobody is. बहुत कम लोग हैं. बहुत boring business है, but boring में ही सबसे ज़्यादा पैसा है. ऐसा लोग बोलते हैं, जो चीज सबसे ज्यादा बोरिंग होती है उसमें ज्यादा पैसा होता है। 100%, राइट। इसलिए तेल कुआं चलाने वाले, स्टील बनाने वाले सब बहुत पैसा बनाते हैं।